بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر خیرالدین باربروسا ایک دلچسپ اور تاریخ انگیز ناول۔ ایپیسوڈ نمبر 12۔ سلطان سلیمان اپنے قیصر کے ایک کمرے میں اپنے ممائدین، اپنے وزیر ابراہیم اور دوسرے سالاروں اور مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مختلف سمتوں سے آنے والے اپنے مخبروں سے کام کی خبریں سن رہا تھا۔ گو سلطان سلیمان کی ابھی تک کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ یورپ پر ضرب لگائے، لیکن مخبروں نے اسے بتایا کہ یورپ والے ہر وقت اس کے حملے کی توقع رکھتے ہیں اور اہل یورپ اس پر کڑی نگاہ رکھتے ہوئے اسے وہ یورپ کے لیے مشرق کا ایک خطرناک اور طاقتور سربراہ سمجھتے ہیں۔ یورپ والوں کا یہ نظریہ درست بھی تھا، آخر وہ خلفاء کا جانشین تھا۔ ان ترکوں نے اب ان عربوں کی جگہ سنبھال لی تھی جنہوں نے صلیبی جنگوں کے بہادروں سے یروشلم چھینا تھا، اور اب تو خود پروٹسٹنٹ مذہب کا پوپ لو کر یورپ کے شہر شہر گھوم پھر کر یہ کہتا پھر رہا تھا کہ ترک خداوند قدوس کی طرف سے اہل یورپ کے لیے عذاب ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی سیاح یا سفیر سلطان سلیمان کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوتے، واپس جا کر اپنی مملکتوں میں یہی دہراتے تھے۔ جس زمین پر ترکوں کے سلطان کے گھوڑوں کی ٹاپ پڑے گی وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہوگی۔ مذہبی تعصب کی وجہ سے یورپ کے درباریوں اور دانش مندوں نے اس ترک کے عظیم کا ایک تصور تھا کہ وہ ایک فاتح ہے جو ان پر پے در پہ حملے کیے جا رہا ہے۔ ہنگری، بلغاریوں، بونسیا والوں کے علاوہ بھی ابھی تک کسی اور ترکوں سے پالا نہیں پڑا تھا، لہٰذا ترکوں کی اثر حالات سے انہیں آگاہی نہیں تھی۔ ہاں، وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ انگلش کے اسلامی اسپین کا وہ مرکب متمدن جس نے غرناطہ کا حسن تخلیق کیا تھا اب مالیہ مٹ کیا جا رہا ہے۔ عربوں کو انگلش سے نکال کر افریقہ کی طرف ہجرت کر جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور ایک بعض عربوں نے سلطان سلیمان کی ہاں بھی پناہ لے لی ہے۔ سلطان سلیمان ایک ایسے ترکی تمدن کا ضرور خواہش تھا جو سب سے الگ تھلگ ہو، مگر جیسے ایشیا اور یورپ دونوں عزت کی نگاہوں سے دیکھے۔ اس کا شہر قسطنطنیہ دو سمندروں اور دو بر اعظموں کے درمیان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس میں ایسے لوگ بسائے جائیں گے جو دوسرے ملکوں سے نکالے گئے ہوں، جنہیں ایشیا اور یورپ کی اور قوموں سے کچھ لینا دینا نہ ہو، کوئی واسطہ نہ ہو۔ جو سوچیں سلطان سلیمان کی تھی، انہی سوچوں کے تحت سکندر اعظم نے عروض البلاد سکندریہ کو آباد کیا تھا۔ سلطان سلیمان زیادہ جاہ و جلال اور بناوٹ کا قائل نہیں تھا، اسے ان عملی باتوں سے دلچسپی تھی جن کی تکمیل کا کوئی امکان ہو۔ اس کے نزدیک گھر کی حیثیت محض یہ تھی کہ وہ ایک خاندان کو سردی اور بارش سے محفوظ رکھ سکتا ہو۔ اس نے معماروں کو حکم دیا کہ شہر کی فصیلوں کو ڈھانک کر پانی کی نہریں بنائی جائے جن سے لوگ مستفید ہوں۔ وہ ایک نئی ترکی طرز تعمیر کا بھی جو یہ تھا اس سے پہلے ساری مسجدیں عہد قدیم کی بنائی ہوئی تھی۔ جامعہ صوفیہ کی نقل ہوتی تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ان کا اپنا کوئی طرز تعمیر ہو۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ ادب حرف فارسی میں ہی کیوں لکھا جائے۔ اپنی فتوحات، حالات اور شان و شوکت کے باعث اہل یورپ سلطان سلیمان کو ترک اعظم کہتے تھے۔ اس کی خدمت میں حاضر ہونے والے سفیر جب اس کی تاج کے ترے کی سلطوں میں جواہرات کے خرکن جگمگاہٹ دیکھتے اور سلطان کے وزیر ابراہیم کی زبانی 7 برجوں کے خزانے کا فخریہ بیان سنتے تو ان کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ جہاں تک سلطنت کے نظم و نسق کا تعلق تھا، جو سلطان سلیمان کا حکم تھا کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ کچا بازار میں ہنگامہ نہ ہونے دے۔ رات کو ہانسوں کی روک تھام کے لیے حکم تھا کہ اندھیرا ہونے کے بعد کوئی سڑکوں پر نہ نکلے، صرف رمضان کے مہینے میں اس کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ افراد کے نظم اور ضبط اور ذمہ داری کا یہ احساس سلطان سلیمان سے لے کر گاؤں کے چوکیدار سب میں یکساں موجود تھا۔ سلیمان میں ایک انفرادی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی یہاں اخلاقی قانون سے ہم سمجھا جاتا تھا۔ اس اخلاقی قانون کو سلطان نے اپنی زبان فرما سے جاری کرتا تھا۔ سلطان سلیمان کے نظم اور ضبط ہی کی وجہ سے چند سال کے عرصے میں یورپ کے کسی اور بادشاہ یا سابقہ سلطان کی نسبت اس کی بے شمار رعایا جس کی خوراک اور سربراہی کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی، بہت خوشحال ہو گئی تھی۔ سلطان سلیمان کے نظم و ضبط کے متعلق ایک فرانسیسی لکھتا ہے، ترک اپنی زندگی میں نظم اور ضبط پسند کرتے ہیں۔ ان کی ہر بات میں انتظام اور سلیقہ ہوتا ہے، کیونکہ اجناس کا بچاؤ اور ان کی تصحیح تقسیم نظم اور ضبط کے لیے ضروری ہے، اس لیے وہ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرح کا غلہ
सस्ते और मुनासिब दामों में उनके यहाँ दस्तयाब हुआ करता था। बहरहाल सुल्तान सुलेमान मुख्तलिफ इलाकों और सूबों से आने वाले अपने मुखबिरों से वहाँ की हालत सुन रहा था कि चौकीदार ने अंदर आकर इत्तला दी कि दो मुख्तलिफ गुरों में हिंगरी के जांबाज ऑस्ट्रेलिया के बादशाह फुडरूट के कासिद आए हैं और सुल्तान की खिदमत में हाजिरी चाहते हैं। इस पर सुल्तान ने अपने वजीर इब्राहिम की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहा, मैं पीछे छोटी खिड़की में बैठता हूँ, तुम खुद ही इन सफीरों से गुफ्तगू कर लो। जो गुफ्तगू इनके तुम्हारे दरमियान होगी मैं छोटी खिड़की से हर बात सुन रहा हूँगा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इस पर सुल्तान अपनी जगह से उठकर पर्दे के पीछे चला गया। वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी और बड़े कमरे में जो गुफ्तगू होती थी वहाँ खिड़की के पास बैठकर सुनी जा सकती थी। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक पहले जान जाबौलिया के कासिदों को पेश किया गया। जाबौलिया का सफीर इब्राहिम के पास आया। इब्राहिम ने उसे अपने करीब नशीस पर बैठाया, फिर उससे आने की वजह पूछी। उस पर वो सफीर कहने लगा, आप जानते हैं कि जाबौलिया न सिर्फ एक हिंगरी की अवामी अफवाज का सिपह सालार बल्कि हिंगरी का बादशाह भी था। लेकिन हस्पाना के बादशाह चार्लिस को ये सूरत हाल पसंद न आई। उसका भाई फिरदुलूद ऑस्ट्रेलिया का बादशाह है। उसने रसद और कमक देकर फरूलंदाह को उकसाया, जिस पर फरूलंदाह हिंगरी पर हमलावर हो गया। उसके नतीजे में हिंगरी के अंदर फरूलंदाह और जाबौलिया के दरमियान जंग छिड़ गई। फरूलंदाह की पुष्टपनाही चार्लिस कर रहा था। उसके पास बड़ा लश्कर और ज्यादा साजो सामान था और उसे बुद्धिमान के बहादुर की भी मदद हासिल थी, लिहाजा वह आसानी से हिंगरी पर काबिज हो गया। उसने सारे वस्ती मैदानों पर कब्जा कर लिया और आवाम को जो फौज जाबौलिया ने इकट्ठी की थी उसे मार भगाया। ये जंग हारने के बाद हमारे बादशाह जान जाबौलिया ने मुझे आपकी तरफ मदद के लिए रवाना किया है। सुल्तान सुलेमान और उसका वजीर इब्राहिम मदद की इस दरख्वास्त से तो खुश हुए, लेकिन जिस अंदाज से दरख्वास्त पेश की गई थी वो उससे नाखुश हुए। इस पर इब्राहिम ने कासिद को सख्ती से झड़का, फिर कहने लगा, फर्दुलंदाह तो कब का हिंगरी में दाखिल हो चुका है और तुम्हारा जाबौलिया इधर उधर धक्के खाता फिरता है। तुमने आने में देर कर दी, तुम्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और फिर तुम्हारे सरदार जाबौलिया की एक ऐसी हिम्मत हुई कि वो अपने आप को हिंगरी का बादशाह समझे। क्या तुमको इसका इल्म नहीं, इस शहर में हमारे सुल्तान तशरीफ फरमा हो चुके हैं और जिस सरजमीन पर सुल्तान की घोड़े की टाप पड़ चुकी है वो सुल्तान का इलाका कहलाता है। मेरे अजीज, तुम यहाँ एक ताअत गुजार अमीर के सफीर बनकर आए हो। अगर खिराज लेकर आए होते तो हाजिर करो, वरना इस मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करना बेकार है। अब तुम बाहर बैठो ताकि मैं दूसरे सफीर से मिल लूं। इब्राहिम के साथ इस कदर गुफ्तगू करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के सफीर ने सुल्तान सुलेमान की खिदमत में हाजिर होना चाहा और उसके साथ जो लोग सामान उठाए हुए थे वो सामान उन्होंने सुल्तान की खिदमत में पेश करने के बाद कहा। सुल्तान सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने बराह रास्त सफीरों को मुखातिब नहीं किया, बल्कि इब्राहिम से कहा, इनसे पूछिए इनका बादशाह फिरदुलंद क्या चाहता है। इब्राहिम ने जब ये सवाल किया तो सफीर जो जर्मन था कहने लगा, अगर वो सुलह नहीं तो कम अज कम जंग रोकने की दरख्वास्त लेकर आया है। इस मौके पर सुल्तान ने खुद जवाब नहीं दिया, बल्कि इब्राहिम के कान में कुछ कहा, जिस पर इब्राहिम ने सफीर की तरफ देखा और डट कर पूछा, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम सुल्तान के हुजूर अपने बादशाह की अजमत का जिक्र करो। यूरोप के दूसरे बादशाहों ने हमारे सुल्तान से नियाजमंदी का इजहार कर रखा है। सफीर बदहवास सा हो गया था, पूछ बैठा, किन बादशाहों ने नियाजमंदी का इजहार किया है। सफीर ने कपकपाती आवाज में पूछा। इस पर पहले से ज्यादा रूखे अंदाज में इब्राहिम कहने लगा, फ्रांस के बादशाह ने, पोलैंड के शहर यार्ने सिलोनिया के हुक्मरान ने, पायरूम ने और वेंस के बादशाह ने। चूंकि ये जवाब हकीकत पर मबनी था, लिहाजा जर्मन सफीर का मुंह खुला का खुला रह गया, वो कोई जवाब ना दे सका। कुछ देर की सोच और विचार के बाद जर्मन सफीर फिर बोला और कहने लगा, हमारा बादशाह फिरदुलंद ये चाहता है कि हिंगरी के तमाम इलाकों में तेलाबंद इलाकों पर उसकी हुकूमत तस्लीम कर ली जाए। इस शर्त पर वो सुल्तान के साथ अमन बरकरार रखेगा। सफीर की गुफ्तगू सुनकर तंजिया से अंदाज में इब्राहिम मुस्कुराया और फिर तनकीद करने के अंदाज में कहने लगा, मुझे ताज्जुब है कि तुम्हारे बादशाह ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जे का दावा नहीं कर दिया। इस पर सफीर बोला और कहने लगा, अगर मुसलमानों का सुल्तान हिंगरी पर हमारे बादशाह फिरदुलंद का तस्लीम कर ले तो हमारा बादशाह मुआविजे में आपके सुल्तान को कुछ रकम अदा कर देगा। इस पर इब्राहिम बरहम होकर उठ खड़ा हुआ। उसने खिड़की के करीब जाकर शहर की पुरानी फसिल की तरफ इशारा किया, फिर सफीरों को मुखातिब करके कहने लगा, इस फसिल को देखते हुए जहाँ खत्म होती है वहाँ 7 बुरुज है। हर बुरुज सोने और जर्र जोहरा से भरी पड़ी है।
रह गई मुआवजे की पेशकश तो न चार्ल्स के वादे का कोई एतबार है और न उसके भाई फिरदुलंद के वादे का। इसके बाद जब सफीरों ने सुल्तान की खिदमत में हाजिर होने की गुजारिश की तो सुल्तान ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्हें वापस चले जाने का हुक्म मिला। सुल्तान की खिदमत में बाजियाबी की इजाजत ना मिलना और वापसी का हुक्म जर्मनों के लिए बुरा शुगुन था। जिस वक्त वो अपनी जगह से उठे तब सुल्तान ने खिड़की के करीब मुंह ले जाते हुए उन सफीरों को मुखातिब किया, तुम्हारे आका को भी अभी तक हमारी हमसायगी और दोस्ती का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा। वापिस जाकर अपने बादशाह से साफ साफ कह देना, मैं अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ बजाते खुद हाजिर हो रहा हूँ कि हंगरी के मुस्तहकम किले जिनका उसने मुझसे मुतालबा किया है वो उसके हवाले कर दो। उसे कह देना वो मेरा इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाए। इसके साथ ही सफीर बाहर निकल गए। उनको वापस नहीं जाने दिया गया था, बल्कि कुस्तुनतनिया में रोक दिया गया था। दरअसल सुल्तान सुलेमान ने तय कर लिया था कि हंगरी को मुकम्मल तौर पर चार्ल्स और उसके भाई फुरुलंदा से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। इसका इरादा था कि उस खुश आइंदा चरागाहों और झीलों वाले मुल्क का नाम मिकिरिस्तान रखा जाए, जहां उसकी जेर निगरानी हंगरी के बाशिंदों को हक खुद अरादियत बख्शा दिया जाए। और उस काम के लिए एक शख्स मौजू और मौजूद भी था और वो जापुलिया था और आवाम उसका साथ भी दे रही थी। जर्मन सफीरों के जाने के बाद सुल्तान इब्राहिम से कहा, जापुलिया को हंगरी का बादशाह तस्लीम कर लिया जाए, उसे खिराज से उस शर्त से मुस्तस्ना कर दिया जाए कि वो वक्त ज़रूरत तुर्की की सल्तनत को लश्कर मुहैया करेगा। सुल्तान इब्राहिम से यह भी कहा कि जापुलिया के कासिदों से कह दो कि वापस जाकर अपने आका से कह दे कि वो दोनों कान बंद करके आराम से सो जाए। ऑस्ट्रेलिया का बादशाह फिरदुलंदा और हस्पानिया का चार्ल्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इब्राहिम ने जब यही अल्फाज जापुलिया के कासिदों से कहे तो कासिद बेइंतहा खुश हुए और फिर इब्राहिम ने उन्हें रुखसत कर दिया। असर के करीब बितरूश काब बिन आमिर की हवेली में दाखिल हुआ। उस वक्त काब बिन आमिर और उसका बेटा मुगीरा बिन काब दोनों अपने अस्तबल में घोड़ों का जायजा ले रहे थे। बितरूश को हवेली में दाखिल होते देखकर वो अस्तबल से निकले, दीवान खाने का रुख किया। फिर काब बिन आमिर ने एक जगह रुक कर बितरूश का इंतजार किया। जब वो करीब आया तो काब बिन आमिर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दीवान खाने में ले गया। दीवान खाने में पहले से माज और उसकी माँ मैसूना बेटी बाहम गुफ्तगू कर रही थी। बितरूश को देखते हुए उन्होंने खुशी का इजहार किया, इसलिए कि बितरूश के चेहरे से उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि वो अच्छी खबर लेकर आया है। जब सब बैठ गए तब बितरूश ने काब बिन आमिर की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जिन मल्लाहों और माही गिरों के जरिए मेरा हसन करसू के साथ राब्ता है, उनके मुताबिक आज आधी रात के करीब हसन करसू हस्पानिया के साहिल पर आएगा। ये खबर सुनकर मास के सरापा में बेनवाबे उमंगे ख्वाहिश को गलों में तबस्सुम करती हुई बिखर गई थी। बितरूश के अल्फाज ने उसके चेहरे पर गुलाबी तमन्नाओं की तकमील का असर कर दिया था। फिर बितरूश बोला और कहने लगा, मोहतरम काब बिन आमिर हसन करसू ज्यादा देर क़याम नहीं कर सकेगा। इसलिए कि बितरूश को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए काब बिन आमिर बोल उठा, क्या वो आने वाली शब को हमारे घर आएगा? हल्के हल्के धीमे धीमे मुस्कुराते हुए बितरूश ने नफी में गर्दन हिलाई। फिर कहने लगा, नहीं, वो आपके हवेली में नहीं आएगा, इसके पास इतना वक्त ही नहीं है। और वो काकाद अपने बहरी बेड़े के एक हिस्से के साथ इधर आएंगे। उनकी मंजिल मगरिबी समुद्र के अंदर, जहां हस्पानिया और अंग्रेजों का एक काफिला नई दुनिया से कीमती सामान लेकर आ रहा है। हसन करसू और काकाद उस काफिले को दूर मगरिब में जाएंगे अपना हदफ बनाना चाहते हैं, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि अंग्रेजों का काफिला अलहदा होकर बाएं जानिब इंग्लिस्तान की तरफ चला जाए और हस्पानिया का काफिला हस्पानिया की तरफ आए। वो दोनों पर एक साथ जरब लगाना चाहते हैं। अगर मैं उसे पैगाम ना भेजता तो यहाँ हस्पानिया के साहिल की तरफ ना आता और ना ही रुकता। मोहतरम काब बिन आमिर, मैंने अपने राजदारों मल्लाहों के जरिए हसन करसू पर इंकिशाफ कर दिया कि आप लोग मास का निकाह उसे कराना चाहते हैं, लिहाजा वो किसी भी सूरत वक्त निकालकर हस्पानिया के साहिल की तरफ आए। अब मेरे इस पैगाम के जवाब में उसने कहला भेजा कि वो और काका बहरी बेड़े का एक हिस्सा लेकर मगरिब की तरफ आएंगे। काका अपने बहरी बेड़े के साथ समुद्र के अंदर लंगर अंदाज होकर खड़े रहेगा, जबकि छोटी सी कश्ती में हसन करसू साहिल की तरफ आएगा। उसकी ख्वाहिश है कि उसका और मास का निकाह उसके दादा की झोपड़े में हो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सिलसिले में कोई इतराज नहीं होगा। इस मौके पर मैसूना और मुगीरा ने थोड़ी देर के लिए काब बिन आमिर की तरफ देखा। निगाहों में कुछ फैसला हुआ। फिर काब बिन आमिर बितरूश की तरफ देखते हुए कहने लगा, हमें क्या इतराज हो सकता है? बितरूश मेरे अजीज, तुम जानते हो माज उस वक्त हमारे पास हसन करसू की अमानत है। मेरी बेटी सामने बैठी है, पूरे हालात से वाकिफ और आगाह है। अगर हसन करसू नामुनासिब हालात के तहत हमारे यहाँ नहीं आ सकता और साहिल में अपने दादा के झोपड़े में ही निकाह का एहतमाम कर देना चाहता है तो हमें कोई इतराज नहीं, हम ऐसा ही करेंगे।
काब बिन आमिर का जवाब सुनकर बितरूस खुश हो गया। फिर अपने सिलसिले को वो आगे बढ़ा रहा था। मोहतरम काब बिन आमिर, इस मौके पर मैं ये भी कहूंगा कि हसन करसो और हमारी बहन माज के निकाह को किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। मैं ये भी कहूंगा कि इस निकाह की खबर आपकी बड़ी बेटी नाबिल तक को नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अगर ऐसा होता है तो उसके जरिए यह खबर कहतानी कबीले तक पहुंचेगी। एक शख्स से दूसरे शख्स, एक औरत से दूसरी औरत के पास जाते हुए ये पूरे अलबशारात में फैल जाएगी। और याद रखना, जिस रोज ऐसा हो उस रोज हम सबको एक नई मुसीबत झेलनी होगी। बितरूस जब खामोश था तब उसकी तरफ गौर से देखते हुए काब बिन आमिर कहने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है, इस निकाह में किस किस को शामिल होना चाहिए? जवाब में बितरूस ने कुछ सोचा, फिर कमरे में उसकी धीमी राजदारानी से आवाज सुनाई दी, इस निकाह में आप खुद, आपका बेटा मुगीरा बिन काब, मंजर बिन जुबैर, मैं और बिसित के अलावा माज और माँ की और उसकी माँ मैसूना शामिल होगी। इसके अलावा न अपने साथ किसी को ले जाइएगा, न किसी पर इस हकीकत की इंकिशाफ कीजिएगा। साथ ही मैं आप पर यह भी इंकिशाफ करूंगा कि खैरुद्दीन बारबूसा ने अपने कुछ साथियों को हसन करसू की माँ और बहन को तलाश करने पर मुकर्रर किया हुआ है और उम्मीद है वो दोनों बहुत जल्द मिल जाएंगी। फिर वक्त निकाह के बाद हसन करसू माज को अपने साथ ले जाना नहीं सकता। निकाह के बाद माज आपके पास ही रहेगी। जो हालात हसन करसू पर गुजर रहे हैं उनके तहत उसकी रिहाइश मुस्तकिल में है। उसने ये भी कहला भेजा कि जब उसकी माँ और बहन मिल जाएगी तो वो माज को अपने साथ अफ्रीका ले जाएगा, जहाँ उन तीनों को बेहतरीन रिहाइश का एहतमाम करेगा। बितरूस जब खामोश था तब मुस्कुराते हुए काब बिन आमिर कहने लगा, बितरूस, ये बात हम सब से कहने की जरूरत ही नहीं। हसन करसू के क्या हालात है हम उससे बखूबी वाकिफ है। और फिर मेरी बेटी माज साथ जाने पर जिद नहीं कर देगी, इसलिए कि उसे भी हसन करसू के हालात का इल्म है। निकाह का एहतमाम इसलिए कर रहा हूँ कि हसन करसू ये भी एहसास रहे कि उस काम में सिर्फ जंगों में हिस्सा लेकर अपने दुश्मन को दबाना और ज़ेर करना ही नहीं, बल्कि उसकी कोई जाती जिम्मेदारियां भी है। ऐसे में इंसान जानबूझकर अपने आप को खतरात में नहीं डालता और जहां तक मुमकिन हो दुश्मन पर जर्ब लगाने के साथ साथ अपनी हिफाजत का भी एहतमाम करता है। काब बिन आमिर जब खामोश है तब मुस्कुराते हुए बितरूस कहने लगा, आपके इरादे बहुत अच्छे हैं और खैर पर मबनी है। अब आप मुझे ये बताएं कि साहिल की तरफ जाने के लिए आपने क्या एहतमाम करना है? जवाब में काब बिन आमिर ने कुछ सोचा, फिर बितरूस की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या इस तकरीब में साहिल के किसी मल्लाह या मछीरे को भी शामिल करना चाहिए? बितरूस ने फिर मुस्कुराते हुए नफी में गर्दन हिलाए कहने लगा, नहीं, कोई और शामिल नहीं होगा। किसी मल्लाह, किसी मछीरे को खबर नहीं होगी कि माज और हसन करसू यहाँ झोपड़े में निकाह हुआ है और ये कि अब वो दोनों मियाँ बीवी है। ये राज सिर्फ उन मल्लाहों तक महदूद रहेगा जिनके जरिए मेरे और हसन करसू की पैगाम रसानी होती है। वो काबिल भरोसा है, इसके अलावा कोई भी इसमें शामिल नहीं होगा। मंजर बिन जुबैर को तो बताना पड़ेगा कि वो आज आधी रात के वक्त झोपड़े में पहुंचे। सवाल से अंदाज में बितरूस की तरफ देखते हुए काब बिन आमिर ने कहा था, अब कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं, मंजर बिन जुबैर के सारे मामले की खबर हो चुकी है। अपनी नशिस्त पर पहले बदलते हुए बितरूस ने कहना शुरू किया, मैं तो अब ये चाहता हूँ कि आप इस वक्त तैयार होकर यहाँ से निकल सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हम आधी रात से पहले यहाँ से कूच कर जाएंगे और उसके दादा की झोपड़ी में बैठकर उसका इंतजार करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो वहां पहुंचे और हमें ना देख कर वो चला जाए। इसलिए जिस मुहिम पर वो और काकाद आए हैं वो इंतहाई अहम है और इस मुहिम के सिलसिले में हसन करसू कोई ताखिर बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी अहम बात यह कि वो वक्त भी जाया नहीं करना चाहता, इसलिए कि अब उन्हें हस्पाने के शहंशाह चार्ल्स की तरफ से खतरा है। इसलिए कि खैरुद्दीन बारबुरसा और उसके सालारों ने हस्पाने के अमीरुल बहर दूरिया को खुले समुद्र के अंदर बदतरीन शिकस्त दी है और उसके कई जहाजों पर कब्जा कर लिया और यहाँ तक इत्तिफा नहीं किया बल्कि कुछ दूर तक उन्होंने दूरिया का ताकुब किया और फिर अचानक वो आंधी और तूफान की तरह इटली की तरफ मुड़े और इटली के साहिली इलाकों के कई शहरों को बर्बाद और पामाल करके रख दिया है। इस तरह जो अजियतें चार्ल्स और उसके पहले हुक्मरानों ने हस्पानिया में मुसलमानों को पहुंचाई, खैरुद्दीन बारबुरसा ने उनका इंतकाम इटली वालों से खूब लिया। अब सुना है इस सिलसिले में हस्पानिया का शहंशाह चार्ल्स बड़ा बरहम है। यूरोप के मुख्तलिफ हुक्मरान उससे पैगाम रसानी कर रहे हैं और उसे ताना दे रहे हैं कि वो यूरोप के 7 मुल्कों का शहंशाह है। फिर क्या बात है कि मुसलमानों को छोटा सा अमीर भर उसके काबू में नहीं आता। उन तानों के जवाब में चार्ल्स ने अपनी तेज रफ्तार काशी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली की तरफ रवाना किए हुए हैं और वहां जिस कदर बहरी बेड़े उन सबको उसने हुक्म दिया कि वो हस्पानिया के बंदरगाह बारसलूना में जमा हो। ये भी सुना गया है कि जब ये सारे बहरी बेड़े बारसलूना में जमा हो जाएंगे तो बजाते खुद चार्ल्स भी बारसलूना पहुंचेगा और अपने अमीर बहर दूरिया के साथ वो बहरी बेड़े में अफ्रीका के साहिलों का सफर करेगा और खुद खैरुद्दीन बारबुरसा से टकराने की कोशिश करेगा। बितरूस जब खामोश हुआ तब काब बिन आमिर कहने लगा, खैरुद्दीन बारबुरसा और उसके साथियों के लिए ये बड़ा नाजुक वक्त होगा। अगर चार्ल्स खुद बहरी बेड़ों की कमांडरी करते हुए उनके मुकाबले जाना चाहता है तो तुर्की के सुल्तान सुलेमान को भी भरपूर अंदाज में खैरुद्दीन बारबुरसा की पुष्टपनाही करनी चाहिए। जवाब में बितरूस ने कुछ सोचा फिर कहने लगा, मेरे मोहतरम, तुर्कों के पास इससे पहले कोई बड़ा बहरी बेड़ा न था
और ना उसकी जरूरत थी। उनके पास जितने जहाज थे वो बारबरोसा के हवाले कर दिए गए हैं और एक कुल 84 जहाज है, उनमें से कुछ भी नाकारा है। ताहम ये भी सुनने में आया कि सुल्तान सुलेमान अनकरीब यूरोप के अंदर खुश्की में अपनी मुहिमों की इब्तिदा करेगा, इसलिए कि चार्ल्स के भाई फर्दुल जो ऑस्ट्रेलिया का हुक्मरान है अपनी हुदूद से तजावुज करते हुए हिंगरी पर कब्जा कर लिया है। और ये भी सुना कि सुल्तान फर्दुल से हिंगरी को खाली करवाना चाहता है। बहरहाल देखे वक्त क्या रंग दिखाता है। उम्मीद है खैरुद्दीन बारबरोसा अहसन तरीके से चार्ल्स और उसके बहरी बेड़े से निपटेगा। यहाँ तक कहने के बाद बितरूश खामोश और फिर अपने सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, इस वक्त सबसे अहम मामला जो हमें तय करने हैं वो ये है कि हम लोग साहिल की तरफ कैसे रवाना हो। मैं चाहता हूँ कि हम लोग इकट्ठे ना जाएं। मैं और मंजर बिन जुबैर दोनों आपसे पहले साहिल की तरफ चले जाएंगे। मल्ला और माहीगीर हसन करसूब के दादा की झोपड़ी को पहले ही साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन वहां जाकर मैं झोपड़े के अंदर रोशनी का इंतजाम करूंगा। मैं रहाई बोई की भेष के बजाय आम कपड़ों में होऊंगा ताकि रात की तारीकी में मुझे कोई देख के तो शक ना करे। वहां जाकर मैं आम लोगों के सामने तो नहीं आऊंगा। आम मल्लाहों और माहीगीरों से मंजर बिन जुबैर ही गुफ्तगू करेगा और उन्हें यह कहकर मुतमईन करेगा कि रात जाबिर बिन मुगीज की झोपड़े में बसर करेगा, इसलिए कि सुबह ही सुबह उसके कुछ जानने वाले समुद्र पार से उसे मिलने के लिए आएंगे। इस तरह वो माहीगीरों और मल्लाहों को मुतमईन करके मेरे साथ झोपड़े में आप सबके आने का इंतजार करेगा। मैं अपना चेहरा ढांप रखूंगा ताकि कोई पहचान ना ले। गो सारी माहीगीर और मल्लाह हमारे राजदार हैं, उन्हीं के जरिए ही हम यहाँ से दस और मजलूम मुसलमानों को अफ्रीका की तरफ रवाना करते हैं। लेकिन हसन करसूर और महाज के निकाह का मामला ऐसा संगीन है कि उनको भी इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ तक कहने के बाद बितरूश रुका, फिर अपनी जगह पर उठ खड़ा और कहने लगा, मैं अब जाता हूँ। जो मामला तय हुआ है उसके मुताबिक अमल किया जाए। मैं यहाँ से जाने के लिए लिबास तब्दील करके कुछ वक्त मंजर बिन जुबैर के यहाँ गुजारूंगा। उसके बाद मैं और वो साहिल की तरफ कूच करेंगे। आप भी माज और मैसून और बिसित को लेकर वहां पहुंच जाइए। इसके साथ ही बितरूश काब बिन आमिर की हवेली से निकल गया था। रेशम जैसी नींद की खुश रंग बिस्तर बिछाती रात आसमान की नीली गोई पर महताब की रोशनी में नहाए बादलों से गले मिलती सेब की फूलों चिन्नार के निपुलों को चमकती चिंबुल की तरह खुशबू से लुत्फ उठा रही थी। लोग गहरी नींद सो चुके थे, रात गहरी हो चुकी थी। जाबिर बिन मुगीज की झोपड़े में काब बिन आमिर, जुबैर बिन काब, मैसून, माज, बितरूश, मंजर बिन जुबैर बैठे बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। बार बार सबकी आंखें समुद्र की तरफ उड़ जाती थी। तेज हवाओं के झगड़ों के बाईस तदब्बुर का मुसहका उड़ता हुआ समुद्र मौत की मस्ती में उस तरह खोल उठा था जैसे उसकी जात की चिलमन में किसी ने आग लगा दी हो। उदास साहिलों की फीकी गोद खोलते समुद्र की लहरों को ललकारते टुकड़े से मुसल्लत अजाब से दो चार कर रही थी। चारों तरफ पेड़ों की शाखें हिल रही थी। जाबिर बिन मुगीज झोपड़े में बैठे सब बड़ी बेचैनी से हसन करसू की आमद का इंतजार कर रहे थे कि बितरूश अचानक चौंक उठा और उन्हें मुखातिब कहने लगा, करसू आ गया। सब अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। झोपड़े के दरवाजे पर खड़े होकर जब उन्होंने चांदनी में नहाए हुए समुद्र की तरफ देखा तो छोटी सी कश्ती समुद्र के सीना और रात का समा चीरती साहिल की तरफ बढ़ रही थी। उसमें सिर्फ दो अफराद सवार थे। दोनों बड़ी तेजी और ताकत के साथ चीख चिल्ला रहे थे। झोपड़े के दरवाजे पर खड़े होकर वो सारा मंजर देख रहे थे। यहाँ तक कि कश्ती साहिल पर आई, फिर उनके देखते ही देखते दोनों कश्तियों से छलांग लगाकर उतरे। कश्ती को खींचकर उन्होंने साहिल की रेत पर चढ़ा दिया था। फिर जाबिर बिन मुगीज के झोपड़े की तरफ बढ़े। जब वो करीब आए तो उन्होंने देखा वो दोनों हसन करसू और काका थे। दोनों ने आगे बढ़कर बारी बारी बड़े पुरजोश अंदाज में काब बिन आमिर, मुगीरा बिन काब, बितरूश, मंजर बिन जुबैर से मुसाफा किया। मैसूना ने आगे बढ़कर दोनों के सर पर हाथ रखा। फिर जबकि उन सब के पीछे माज अपने हसन करसू की सारी तांबे और अपने जमाल के सारे जलों को सिमटती हुई गर्दन झुकाए मुस्कुरा रही थी। ताहम वो कभी कभी हसन करसू की तरफ देख लेती थी। सब झोपड़े में बैठ गए। फिर गुफ्तगू का आगाज काकात ने किया। माज को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, माज मेरी बहन, जिंदगी के हम सफर के लिए तुमने हमारे भाई हसन करसू का इंतखाब किया है। इसके लिए मैं और मेरे दो साथी जो यहाँ नहीं आए तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मेरी बहन रिश्तों और नातों की जो ग्रोह और अकीदा लगने की जा रही है, अक्द लगने जा रही है, इसकी तकमील से पहले मेरी बहन हकीकत हाल तुम पर वाज़ेह करना हमारा फर्ज बनता है। इस वक्त मेरा भाई हसन करसू मेरे पहलू में बैठा हुआ है। अगर तुम हमारे हालात, हमारी जिंदगी के नशीब व फराज से वाकिफ नहीं हो तो थोड़ी सी तस्वूर में तुम्हारे सामने पेश करता हूँ ताकि आने वाले दिनों में तुम्हें पछतावे का सामना ना करना पड़े। मेरी अजीज बहन, हम वो लोग हैं जो लंबी रातों, रोशन दानों, नाआशना वादियों और अजनबी मुसाफिरों में भटकते हैं। मेरी बहन, हम बचपन से समुद्र और बहर की गोद में परवरिश पाने वाले हैं। नगमों के बेपनाह लोच, माँ की बोसों की गुदाज,
नरमियों, जिस्मों और पैकर के निगहबान फरिश्तों जैसी ममता से महरूम रहे। मेरी बहन, हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ इरादे हैं। कभी समुद्र के अंदर हम ठट्टे मारते लहरों की तरह खुश व खुर्रम होते हैं, कभी नील और तपती हुई रेत में हम जंग लड़ते हैं। मेरी बहन, जिस जिंदगी की इब्तिदा करने जा रही है उसमें दाखिल होने के बाद ना वाकिफ वक्त के खुरूश और मुस्तकबिल के खौफनाक मनाजिर से डरना नहीं। काकत जब बोलता रहा, माज बड़े गौर से उससे सुनती रही। जब वो खामोश तब गहरे के बादल में जलती दमकती चांदनी की तरह उसने कहा, मेरे भाई, जो फैसला मैंने किया वो सोच समझ कर किया है। आप मेरे मुतालिक कोई फिक्र ना करें। मैंने अपनी जिंदगी के लिए जिस साथी का एहतमाम किया है उसमें मेरे दिल में मेरे जहन की पुकार, मेरे जमीन का फैसला बिल्कुल एक है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि जख्म पाँव की छल्ले लिए मैं खुद एतमादी की धूप की तरह आप लोगों के बीच में रहूंगी। माज जब खामोश हुई तब बेपना खुशी का इजहार करते हुए काकात कहने लगा, माज मेरी बहन, कसम खुदावंद कुद्दूस की जिन ख्यालात और जिन इफ्कारी की मैं तुमसे तवक्को रखता था तुमने उन्हें का इजहार किया है। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हम अपने अंदर हम तुम्हें ऐसे रखेंगे जैसा एक बागबान फूलों को और खानदान का एक सरबराह अपने खानदान के सारे अफराद को रखता है। खैरुद्दीन और हमारे दूसरे साथियों के अहले खाना उन दोनों अलजजायर में मुकीम है। मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर रहते हुए तुम सुकून और खुशी महसूस करोगी। यहाँ तक कहने के बाद काकात खामोश हुआ। फिर काब बिन आमिर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे मोहतरम, जिस काम के लिए आप आए हैं मेरे ख्याल में उसकी तकमील होनी चाहिए, इसलिए कि मैं और हसन कसू ज्यादा देर यहाँ क्याम नहीं करेंगे। जिस मुहिम पर हम निकले हुए हैं वो बड़ी अहम है। काकात के अल्फाज का काब बिन आमिर ने कोई जवाब ना दिया। जवाब तलब से अंदाज में उसने अपने पहले में बैठे मंजर बिन जुबैर और बितरूश की तरफ देखा। फिर वो दोनों हरकत में आए और जाबिर बिन मुगिस ने उसके झोपड़े के अंदर हसन कसू और मास का निकाह पढ़ा दिया था। निकाह के बाद काकात अपना मुंह हसन कसू के कान के करीब ले गया और मुस्कुराती हुई आवाज में कहने लगा, करसू मेरे भाई, मैं जानता हूँ हमारे पास यहाँ क्याम करने के लिए वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं मास के अलावा सबको झोपड़े से बाहर ले जाता हूँ। देखो, अब तुम दोनों मियाँ बीवी हो, थोड़ी देर तुमने रुखसत हो जाना है। रुखसत से पहले मैं चाहता हूँ तुम दोनों मियाँ बीवी तन्हाई में गुफ्तगू कर लो। मास को तुम्हारी तरफ से जहाँ ढरास होगी वहाँ तुम्हारे आज़म और इत्मीनान में भी इजाफा होगा। काकात की इस गुफ्तगू के जवाब में हसन कसू कुछ ना बोला, बस मुस्कुरा कर रह गया था। इस पर काकात उठ खड़ा और कहने लगा, हसन, तुम और मास झोपड़े में ही बैठो, बाकी सब लोग मेरे साथ बाहर रहेंगे। इस पर काब बिन आमिर, मुगीरा बिन काब, बितरूश, मंजर बिन जुबैर मैसूना को लेकर काकात के खीमे से बाहर निकल गया था। थोड़ा सा दूर जाकर उनको मुखातिब करके कहने लगा, आप सब लोग मेरी बातों का बुरा ना मानेगा। हसन और माज अब दोनों मियाँ बीवी हैं। थोड़ी देर तक हम लोग यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। आप लोगों को बाहर लाने का मकसद ये था कि वो दोनों मियाँ बीवी तन्हाई में थोड़ी देर के लिए आपस में बातें कर ले। काकात की इस गुफ्तगू पर काब बिन आमिर मुस्कुरा कर कहने लगा, बेटे, जो काम मैं करना चाहता था वो तुमने कर दिया। अगर तुम ना कहती थोड़ी देर तक मैं खुद ही सब लोगों को लेकर बाहर आने वाला था कि माज और हसन कसू के आपस में कुछ कहने और सुनने का मौका मिल जाए। दूसरी तरफ जब सब झोपड़े से बाहर निकल गए तब अपनी जगह से उठकर हसन कसू माज की पहले में आ बैठा। इस मौके पर माज का जिस्म कपकपा उठा था। फिर माज के शाने पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार और चाहत में हसन कसू कह रहा था, माज, मेरे पास अल्फाज नहीं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हारा शुक्र अदा करूं कि तुमने मेरी जिंदगी का साथी बनना कबूल किया। माज, गो मैं हर वक्त सहरा और समुद्रों के अंदर मौत और कज़ा से दस्त पे गिरेबान रहता हूँ, फिर भी तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा रुखसार गुल और तुम्हारी खूबसूरती मुझे एहसास दिलाती रहेगी कि जहाँ मैंने मौत से दस्तगीर गिरेबान होना है वहाँ मैंने किसी के लिए अपनी हिफाजत का एहतमाम भी करना है। यहाँ तक कहने के बाद हसन कसू जब खामोश है तब माज चौंकी। अब हसन कसू की बीवी थी। चूंकि हसन कसू की बीवी थी, किस कदर बेबाकी का इजहार करते हुए उसने हसन का हाथ अपने दोनों गुजार हाथों में लिया, उसके हाथ की पुष्ट को बोसा दिया, फिर अपनी शीरी आवाज में कहने लगी, आप पहले शख्स हैं जिसने मेरे सामने मोहब्बत और चाहत का तूफान खड़ा करके मेरी कुंवारी सांसों का झोंका था। वो मैंने आपको देखा ना था, फिर भी मैं अंदाजा और आवाज से मारा रहकर आपकी मोहब्बत की लज्जत से सरशार हो गई थी। मैं जानती हूँ थोड़ी देर तक आप मुझसे रुखसत हो जाएंगे। रुखसत से पहले मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आम औरतों की तरह हिजर और फिराक की गीत गाकर भीगी पलकों की तहरीक के साथ आपकी आमद का इंतजार नहीं करूंगी। मैं जब अलबशारत के किसी चोटी पर खड़े होकर ख्वाहिशों की बेबर्क इशार की तरह आपकी राह भी देखूंगी और महकते धकते क्लूज के साथ आपकी कामयाबी और आपकी फूज मंदियों के लिए दुआ भी मांगती रहूंगी। हसन कसू अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। माज का हाथ पकड़कर उसने उठाया और फिर कहने लगा, तुम्हारी दुआओं के जवाब में हमेशा मैं तुम्हारा ममनून और शुक्रगुजार रहूंगा। इसके बाद माज का हाथ थामते हुए हसन कसू झोपड़े से निकला। झोपड़े से निकलकर उसने माज का हाथ छोड़ दिया। फिर धीमी सी आवाज में उसने काकात को पुकारा और उस पुकार के जवाब में काकात और बाकी सब लोग उनके करीब झोपड़े के पास आ खड़े हुए। फिर हसन कसू ने काकात को मुखातिब किया, मेरे भाई, आप कुछ करें, हमारे साथी बड़ी बेचैनी से हमारे मुंतजिर होंगे।
قبل اس کے سمندر کے اندر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے ہمیں فوراً ان کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ کاکد نے اس سے اتفاق کیا، پھر دونوں باری باری سب سے ملے اور کشتی میں بیٹھ گئے۔ بڑی تیزی کے ساتھ چوہیوں کو حرکت میں لائے اور کشتی کو سمندر کی طرف لے جانے لگے، جب تک رات کے دامن پر پھیلی چاندنی میں کنارے پر کھڑے ان سب کو کاکد اور حسن کرسوک کی کشتی دکھائی دیتی رہی۔ وہ وہاں کھڑے رہے، جب کشتی سمندر کی کوک میں نظروں سے اوچھل ہو گئی تب وہ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس بستی کی طرف جا رہے تھے۔ حسن کرسو اور کاکد نے مغرب میں دور تک اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ اپنے آگے انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے، اور جب انہیں اطلاع دی گئی کہ ہسپانیہ اور انگلستان والوں کا ایک متحد قافلہ سمندر کے اندر قریب آ گیا ہے تب وہ بالکل تیار اور مستعد ہو گئے۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا جس طرح اس سے پہلے حسن کرسو اور کاکد نئی دنیا سے آنے والے قافلے پر حملہ ور ہو کر ان کے سامنے جہازوں اور ان کے سارے سامان کو لے کر چلے گئے تھے، اس بار بھی وہ اسی انداز میں حملہ ور ہوئے۔ جس وقت وہ حملہ ور ہوئے اس وقت تک سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوا تھا، تاہم ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی تھی لیکن ابھی صاف اجالا نہیں ہوا تھا۔ ایسے میں حسن کرسو اور کاکد نے خوفناک حملہ اس کاروان پر کیا۔ کاروان کے اندر کافی مسلح جوان تھے جنہوں نے بھرپور انداز میں اپنا دفاع کیا، لیکن انجام کار حسن کرسو اور کاکد نے انہیں ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ کچھ دیر تک جہازوں اور کشتیوں کے اندر قذاق کے رقص کا سما رہا۔ حسن کرسو اور کاکد نے بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جس وقت حسن کرسو اور کاکد نے مغرب کی طرف سفر شروع کیا تھا اس وقت ہوا مخالف تھی۔ اب جب کہ انہوں نے دشمن کو زیر کر لیا اور دشمن کے بحری جہازوں پر قبضہ کر لیا تب انہوں نے دیکھا کہ ہوا اب بھی موقف نہ تھی۔ پہلے ہوا مغرب سے مشرق کی طرف تھی، اب شمال سے جنوب کی طرف چلنے لگی تھی۔ کسی متوقع تعاقب سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے ہوا کے رخ پر پہلے جنوب کی طرف سفر کیا اور یہ سفر سے پہر تک جاری رہا۔ پھر ان کی خوش قسمتی کی ہوا کا رخ دوبارہ مغرب سے مشرق کی طرف رہا، لہٰذا وہ بھی ہوا کے موافق بڑی تیزی سے افریقہ کے ساحلوں کا رخ کر رہے تھے۔ ایک روز خیرالدین باربروسا اپنے سارے چھوٹے بڑے سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سمندر کا کنارہ تھا، وہ سب ساحل کی ریت پر بیٹھے جو سامان حسن کرسو اور کاکد گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک خیرالدین باربروسا نے موضوع بدلا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، اس سے پہلے بھی میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اب افریقہ میں ہماری حالت کافی مضبوط اور مستحکم ہو چکی ہے۔ کوکو حکمران ابن قاضی ختم ہو چکا ہے۔ ٹیونس کے حسان کو شکست دے کر ہم نے ٹیونس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب ہمارے سامنے جو بڑی قوتیں ہیں افریقہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے وہ تلمسان کا حکمران ابو ہمو اور بربروں کا حکمران حفصی رہتے ہیں۔ جہاں تک صغرا قبائل کے دوسرے بڑے سردار احمد ابن قاضی کا تعلق ہے تو اس سے قبائلی صغرا کا سردار عبدالعزیز خود ہی نپٹ لے گا۔ اس وقت میں تینوں موضوعات پر تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ آج ہی میں ایک قاصد قبائل صغرا کے سردار عبدالعزیز کی طرف روانہ کر رہا ہوں اور اس کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کے پاس جس قدر مسلح جوان ہے ان کے ساتھ وہ احمد بن قاضی پر حملہ ور ہو اور ہر صورت میں اسے مسلمان قوتوں کا فرما بردار بنا کر رکھے۔ دوسرا موضوع ہے کہ اس وقت ہمارے پاس عسکری طاقت بھی خوب ہے، لہٰذا باری باری تلمسان کے حکمران ابو ہمو اور بربروں کے سلطان حفصی پر ضرب لگائی جائے اور انہیں بھی اپنا فرما بردار بنایا جائے۔ تیسرا موضوع ان دونوں موضوعات سے زیادہ اہم ہے اور وہ یہ کہ اس وقت ہمارے پاس بڑے جہازوں کے علاوہ چھوٹی بڑی کشتیاں بھی کافی ہیں۔ پچھلے دنوں ہسپانوی امیر البحر دوریا کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں ہمیں اپنی ساری کشتیوں کو حرکت میں نہیں لائے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ کشتیوں کو ہم ایسی جگہ محفوظ کر دیں کہ جب ہمارے حالات ناموافق ہو یا خدا نہ کرے ہمارے بحری بیڑے کو نقصان ہو تو ان محفوظوں کی کشتیوں کو نکال کر ہم ایک بار پھر دشمن کے خلاف حرکت میں آ سکے۔ خیرالدین باربروسا یہاں کہنے کے بعد خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر اپنے پہلو میں بیٹھے عالم اسلام کے رجل عظیم اور عظیم امیر البحر ترغت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ترغت میرے بھائی، تم جنگوں کا ہی نہیں سمندر کے بھیدوں کا بھی گہرا تجربہ رکھتے ہو۔ جو تجویز کشتیوں کو محفوظ کرنے کی میں نے پیش کی ہے کیا اس سے تم اتفاق کرتے ہو؟ باربروسا کے اس استفسار پر ترغت کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر وہ کہہ رہا تھا، میرے بھائی، تم نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ میں خود چاہ رہا تھا کہ اپنی کچھ چھوٹی بڑی کشتیوں کو چھپا کر محفوظ کر دیا جائے اور کشتیوں کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ کار میرے ذہن میں ہے۔ ترغت کے ان الفاظ پر خیرالدین باربروسا چونکنا ہو گیا، پھر پوچھنے لگا، وہ کیا طریقہ ہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ میں نے بھی کشتیوں کو چھپانے اور محفوظ کرنے کا ایک طریقہ سوچ رکھا ہے۔ ترغت مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جو طریقہ کار میں نے سوچا ہے وہ اس طرح کہ کچھ کشتیوں کو جن میں زیادہ تر بڑی کشتیاں ہو اسے رسیوں سے باندھا جائے جو سمندر کے پانی میں ڈوبنے کے باوجود بھی خراب نہ ہو
और फिर उन कश्तियों को समुद्र के किनारे उस जगह डुबो दिया जाए जहां पानी खूब गहरा हो, और फिर जिन रस्सियों के साथ ये कश्तियां बंधी हुई हो उन्हें किनारे के अतले पानी की तरफ लाया जाए, और फिर किनारे पर इस कदर गहरे खड्डे खोद दिए जाए कि जिनके रस्सियों के साथ डूबी हुई कश्तियां बंधी हुई हो वो ना पानी दिखाई दे और न ही खुश्की पर। जो गड्ढे खोदे जाए उनके अंदर घुटने नस्ब किए जाए और उन घुटनों के साथ और उन खुट्टों के साथ रस्सियों को बांधकर उनके ऊपर रेत पर डाल दिया जाए। तुर्गुत के खामोश होने पर खैरुद्दीन कह रहा था, तुर्गुत मेरे भाई, कसम रब्बे काबा की, तूने वही बात कही, वही तदबीर बताई जो मेरे जहन में भी थी। जो तरीकाकार तुमने बयान किया बिल्कुल इसी तरह का मैं भी फालतू कश्तियों को समुद्र के अंदर महफूज करना चाहता हूँ इस तरीके से, क्योंकि हमारे साथियों को भी आगाही हो गई है। लिहाजा उठो, बर वक्त और इंतहाई अहम जरूरत पूरी करने के लिए उन कश्तियों को समुद्र के अंदर महफूज कर दे। इनके साथ ही सब सालार उठ खड़े हुए। साथ ही खैरुद्दीन बारबरसा के हुक्म पर बहुत से माहीगीरों को वहां बुला लिया गया और आन की आन में कई कश्तियों को रस्सियों से बांधकर और समुद्र के किनारे गहरे गड्ढे खोदकर उनमें घुटनों तक कश्तियों को समुद्र के अंदर डुबोकर महफूज कर दिया गया था। हिस्पानिया का शहंशाह चार्ल्स एक रोज बार्सिलोना की बंदरगाह पर 7 मुल्कों के बहरी बेड़ों का जायजा लेने के बाद बंदरगाह के किनारे एक इमारत में अपने अमीर बहर के अलावा कज़ाकों के सरदार और कुछ दिगर सरगर्दा लोगों के साथ बैठा बहरी बेड़ों से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा था। ये बहरी बेड़े स्पेन, जर्मनी और कई और ममालिक के थे। इन बहरी बेड़ों के अंदर इस कदर बड़ा लश्कर चार्ल्स के पास मौजूद हो गया था कि चार्ल्स ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर इस बहरी बेड़े और इतने बड़े लश्कर को लेकर वो निकले तो दुनिया की कोई ताकत उसके मुकाबला नहीं कर सकेगी। बहरहाल बंदरगाह की एक इमारत में कुछ दिगर और बहरी बेड़े से मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था कि अचानक उसने मौजू बदला और अपने अमीर बहर दुरिया की तरफ देखते हुए कहने लगा,